After the completion of second chapter here, we are starting our discussion. Chapter number 3, the human reproduction. In the human reproduction, in this chapter, we are discussing much in detail all the details regarding male reproductive system, female reproductive system, gestation, parturition, all. Just in the beginning, in the first lecture, first video based on human reproduction, every time I am writing the number indicates the video number. In this particular session, I am trying to explain the male reproductive system and anatomy of transverse section of the testes. Human male reproductive system includes a pair of testes. This is just a diagrammatical transverse section of human male reproductive system. In the human male reproductive system, all the organs, just I have tried to show, which are there in our book, page number 43. Basically, these are testes. Testes are protected in a scrotum sac, the skinny pouch bag-like structure which is projected outside the body. Because of the production of the sperm spermatogenesis, it requires lesser body temperature, 2 to 2.5 degree lower than the normal build-up body temperature, and that's why they are projected outside. The testes, over the testes, there is a presence of epididymis. Testis is approximately 4.5 centimeter wide and 2 to 3 centimeter width. A part of that, inside the testis, various compartments are there. There are 250 approximately testicular lobules that I will try to explain little bit later. From testis, there develops a vasa deferens, which enter into the abdominal here थ्रू अ स्पर्मेटिक कॉर्ड. बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना समझना, क्योंकि मैं वापस वही ड्यूअल लैंग्वेज यूज करूंगा. At the time of delivery of male child, the testis will project inside the abdominal cavity. In the few early days, when the pediatric doctor examines, this testis if remain inside the body cavity. अगर testis body के अंदर रह गए तो जो पीडियाट्रिक डॉक्टर होंगे वो बोल देंगे कि भाई ये टेस्टिस को बॉडी के बाहर सर्जिकल ऑपरेशन करके निकाल दिया जाएगा. और जैसा टेस्टिस बाहर की तरफ स्कोडल सैक में डिसेंड होता है तो साथ में वो वासा इफ्रेंशिया, आर्टरी, वेन, ब्लड कैपिलरीज साथ में लेकर डिसेंड होता है, जिसको हम बोलते हैं दैट इज स्पर्मेटिक कॉर्ड. जो वासा डिफरेंशिया है बॉडी के अंदर एंटर होकर आफ्टर द एंटरिंग इनटू बॉडी टुवर्ड द लूप्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेटर है. यूरेटर जो ऊपर से किडनी से आ रहा है यूरेटर, इट लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, पूरा ओवर लूप करके यहाँ पे एक स्फॉलन स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा जिसको हम बोलेंगे दैट इज सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल्स बना देगा. सेमिनल वेसिकल्स प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ से यहाँ पे बोले तो एक यूरिनोजेनिटल डक्ट के अंदर ये खुल जाएगा. इन ह्यूमन पेनिश, ये अपन बोले पेनिश इज said to be the cylindrical organ projected outside the human body. Inside that there is a presence of a small duct, and that duct carries that is, it is known as urinogenital duct, because of urine prepared from the kidney also transported here, and also the gametes which are stored, they are transported here. Because of this, it is known as urinogenital duct. When I am taking transverse section of testis, कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताने का ट्राई कर रहा हूँ. अगर मैं ये टेस्टिस का यहाँ से ट्रांसफर्स सेक्शन लूँ, टीएस लूँ, तो आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे फोर्स मतलब स्किन देखेगा, और स्किन के ऊपर लेटरल साइड में यहाँ पे दो कॉलम्स हेरेडिटरी टिश्यूज के मिलेंगे. 2 columns of hereditary tissues are present. 2 columns of hereditary tissues, and they possess blood sinuses. Sinuses मतलब chambers. Lowerly situated, it is smaller one, and in the center of the smaller hereditary tissue, there is a presence of an opening, and that opening is known as urinogenital
जेनिटल पैसेज, ये सेंटर मोस्ट से यूरिनरी जेनिटल पैसेज बाहर निकलता है. ओके. एंड 2 मतलब टोटल इरेक्टाइल टिश्यूज के कॉलम कितने हैं? तो टोटल इरेक्टाइल टिश्यूज के कॉलम है 3, 1 2 3, 2 dorsal and 1 lateral. And ventrally located lateral is responsible, which carries at the central urinogenital passage. Now, this is all about the human male reproductive system. In very next, I am trying to explain the ultrastructure of the seminiferous tubules and ultrastructure of the testis. In this particular portion, I am trying to explain the testis. अगर मैं ये testis को enlarge करूँ, यहाँ पे enlarge करूँ, तो पूरा के पूरा testis ये testis बन जाएगा. जिसकी जरूर नहीं है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ. और टेस्टिस के ऊपर बोले तो एपिडिडाइमस अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 meter longer tube. Inside the testis there are chambers are present, and these chambers are known as testicular lobules. जो testicular lobules वाला जो concept है, अगेन testicular lobules वाला जो concept है उसको समझने के लिए बेटा मैं अकेला टेस्टिस यहाँ पे बिगर ड्रॉ करता हूँ. अगर मैं बोलूँ तो ये स्कॉटम सेक जाएगा. मैंने सिर्फ छोटा सा पोर्शन एनलार्ज किया है, मतलब एक ही टेस्टिस को एनलार्ज कर रहा हूँ. और यहाँ पे मैं कुछ चैम्बर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये चैम्बर्स जो मैंने ड्रॉ करे उसको मैं लेबल करूँगा. दीज आर सेड टू बी द टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स तो नंबर आर अप्रॉक्सीमेटली कितने होते हैं? तो बेटा इसके अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं उसके जो टोटल कंपार्टमेंट्स रहेंगे वो छोटे चैम्बर्स होते हैं. और जितने भी चैम्बर्स हैं ना, वो चैम्बर्स पूरे सराउंडिंग टेस्टिस के अंदर होते हैं. टोटल चैम्बर्स अप्रॉक्सीमेटली 250 होते हैं इन ईच टेस्टिस. अब ईच टेस्टिस मतलब मान ले टेस्टिस हुए तो सरकमफ्रेंस के अंदर छोटे चैम्बर्स हैं. हम टेस्टिस को एलएस में लेके समझने का ट्राई कर रहे हैं. इन ईच टेस्टिस मिनिमम 1 मैक्सिमम 4 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आर देयर. अगर मैं इसकी बातचीत करूँ, ये 1 2 3 4 5, मैंने 5 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ड्रॉ करने का ट्राई किया. मिनिमम 1 मैक्सिमम 4 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जाएगा. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज सेड टू बी द हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर. इसके अंदर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा. हाईली कॉइल्ड व्हेन इट इज कमिंग आउट, जैसा ये बाहर निकलेगा तो वासा इफ्रेंशिया, ओके, वासा इफ्रेंशिया सबके सब रिजॉइन होके यहाँ पे रेडिटेस्टिस, और रेडिटेस्टिस फिर आगे जाके इधर एपिडिडाइमस बनाएगा. एपिडिडाइमस 6 to 7 मीटर, और एपिडिडाइमस फिर आगे जाके एब्डोमिनल कैविटी में निकल जाएगा, दैट इज एग्जिट कर लेगा. अब ये बेटा लोग जो मैंने आप लोगों को समझाया उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, और जो कीवर्ड्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स उसको मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले अगर मैं ये एक टेस्टिक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को एनलार्ज करूं, या अगर देखना बेटा, अगर मैं यहाँ से कट करूं, ये इतना पोर्शन कट करूं और उतना ही पोर्शन अगर यहाँ पे एनलार्ज करूं, एनलार्ज सिंपल, तो वो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा? तो ब्लू टू ब्लू कलर मेरे को फॉलो करना पड़े, ब्लू टू ब्लू. तो बेटा यहाँ पे अगर मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक एंटायर सर्कल ड्रॉ किया, एक ट्रांसफर सेक्शन कट किया, मतलब ये एक ही सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जाएगा, और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जाने के बाद वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्रिएट होगा. सेंटर मोस्ट, यहाँ पे सेंटर मोस्ट याद रखना बेटा कि ये है एक ही ट्यूब, लेकिन अंदर जाके सुपर फोल्ड क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे हमको अलग अलग सर्कल्स, कुछ हाफ सर्कल्स कट हुए मिलेंगे. सेंटर में होगा जिसको हम बोलेंगे ल्यूमेन. ल्यूमेन किसका?
तो ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ल्यूमेन प्रेजेंट होगा। और ये एंटायर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इस वॉल के अंदर अलग अलग स्टेजेस के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोकोरियम, सेकेंडरी स्पर्मेटोकोरियम, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजुआ देखने को मिलेंगे। They are just said to be the various developmental stages of sperm। और यहाँ पे एक स्पेशलाइज सेल्स होगा जो सेल्स का नेम दैट इज सेड टू बी द सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, सर्टोली सेल। This Sertoli cell location and function. What is the location and function of Sertoli cell? So Sertoli cell is located inside testis, testis के अंदर, inside seminiferous tubule के अंदर। This is location and function, provide the nutrition to the spermatozoa या primary spermatocyte, secondary spermatozoa, जो spermatogenesis process होता है उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल सेल। ये इंटरस्टिशियल सेल लोकेशन एंड फंक्शन, तो इंटरस्टिशियल सेल्स एंड सर्टोली सेल्स, अगर मैं इसकी बातचीत करूं तो इंटरस्टिशियल सेल्स आर लोकेटेड इनसाइड, यहाँ पे मैंने अभी डायग्राम में बताया नहीं बेटा, इंटरस्टिशियल सेल आर लोकेटेड इनसाइड टेस्टिस, इनसाइड टेस्टिकुलर लोब्यूल, बट आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर मैं यहाँ पे ग्रीन कलर के कुछ सर्कल्स ड्रॉ करूँ और मैं बोलूँ कि इंटरस्टिशियल सेल्स है, तो इंटरस्टिशियल सेल्स का लोकेशन, इंटरस्टिशियल सेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा बेटा। दो यहाँ पे पूरा संभालने का है। आज तक की हिस्ट्री में लगभग बोर्ड के अंदर जो कोई क्वेश्चन पूछा गया हो कि राइट शॉर्ट नोट ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछ सकता है, ऐसा ही नहीं बोल सकते कि पूछ ही नहीं सकता, लेकिन हाँ उसके चांसेस लगभग कम है, लगभग कम है। ओके, अब देखना यहाँ पे जो 5 स्टार टर्म रहेगा, कोई भी सिस्टम अगर हम पढ़े, जैसे आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, तो सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन 11th-12th में कम पूछे जाते हैं, लेकिन वो सिस्टम समझेंगे तो आगे जाके उससे बेस्ड जो अपने को शॉर्ट नोट सीखने का है वो समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट प्रॉपरली देखना, जो ये आज अभी के जो वीडियो है, वीडियो नंबर 1, उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार टर्म, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स। सेकेंड, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स, what is testicular lobules, and again in the male the process of spermatogenesis starting from puberty up to that it is going on, but it is in the female it is not that like that, जो अपन स्टेप बाय स्टेप देखने वाले। अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी डिस्कशन था मैंने प्रॉपरली समझाने का ट्राई किया। अभी एक कंसेप्ट और रह जाता है जो काम का है, और वो कंसेप्ट है एसेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो एसेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की बेटा जब मैं बात कर रहा हूँ, तो एसेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड बेसिकली इन ह्यूमन बॉडी, इन मेल्स, ह्यूमन मेल्स, एसेसरी मेल reproductive gland. So there are basically 3, I can say, seminal vesicle, then prostate gland and bulbourethra gland. All these 3 are just said to be the accessory reproductive glands, accessory male reproductive glands. Prior, if I am switching to the next one, अगर मैं आगे का कंटिन्यू करूँ उससे पहले बेटा यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि 2 वर्ड और समझ, एक है सीमेन और एक है स्पर्म सेल।
पहला स्पर्म सेल और स्पर्मेटोजुआ एक ही वर्ड है, बाय बैटल ऑफ वर्ड्स एक ही वर्ड है. Semen, that means sperm cell plus secretion of other accessory male reproductive glands. Together they form a fluid that is known as semen. Semen and sperm cell, two are different terms are there that you have to follow. Clear? यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है. वेरी नेक्स्ट मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर आपको आगे अपडेट करता रहूँगा. थैंक यू.